by algorithm. We all know that a coin has two sides. Here also, social media has both advantages and disadvantages. So let's start the debate and know it from you different people views. Thank you so much, Isha. It was a very good start. So now, please, I would invite Mr. Pawan. Please, sir, go ahead and tell us what do you think about the same. Thank you, all of you. Good afternoon. My name is Pawan. I am from Aurangabad. So, our today's topic is social media is polarizing society. तो इसका आंसर है यस. सोशल मीडिया डिवाइड करती है सोसाइटी को, लेकिन एक उसके साथ में एक हेल्थी डिस्कशन भी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, ऑनलाइन लर्निंग. ये सोच डिवाइड करती है कि नहीं है कि एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट कैसा होगा. अगर वो अवेयर होगा किसी इश्यू के बारे में, तो वो फेक न्यूज कम 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 स्प्रेड करेगा और इससे सोसाइटी डिवाइड अवॉइड हो सकती है. और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हमें कोई भी इश्यू को अगर देखना है तो एक ऑथेंटिक सोर्स से देखना पड़ेगा. और मैम ने जैसे कहा कि अगर अपना एम क्लियर है तो फिर हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग पे, क्योंकि सोशल मीडिया का एक गोल होता है प्रॉफिट मोटिव का. वो सबसे बड़ा मोटिव होता है उनका सोशल मीडिया का. लेकिन उसके साथ अगर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उससे एक्सलेंट बेनिफिट्स ला सकते हैं. अगर सोशल मीडिया ही हमको कंट्रोल करने लग जाएंगी तो फिर उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है अपना. तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करना चाहूंगा सबको कि द सोशल डिलेमा ए नाम की डॉक्यूमेंट्री. आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो सोशल मीडिया के बारे में, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you so much, Pawan. It was a very delightful point, a precise and concise point put by you. Next up, we have Sakshi. Please go ahead. Good evening, everybody, and I'm Sakshi from social media. So we all know that yeah, social media is advantage for it. We are talking with each other because of social media. So one thing which is clear that social media has crumbled all physical and geographical boundaries to us. Okay. Second thing, it is like something we are more close to someone on the phone rather than being on a rainbow. Now taking how we have interpreted social media. We have taken it as a status symbol, and a status of modernity. Every one of us have taken it. Now, after discussing so many topics on this platform, now we come to this topic, and this topic is something where we cannot blame anyone else because we are ourselves responsible if we are suffering from something. Okay? Mark Zuckerberg doesn't say us कि यार Facebook क्या क्या account बना लो. It was us who decided कि हमको बनाना है account. ठीक है? Now what is the consequences? We have a constant urge of checking our messages, notification, और इसकी वजह से our disease has come into being infomania, where our brain dopamine neurons, which are for addiction, signals us कि यार constant we have to check. So see, what my point is that कि it is churning up within. So understand your mentality that what you want. Do you really want this right now? Because sometimes we are excited so much that we don't see our anxiety of this. So take a stand for yourself. You don't need any social media influencer to influence you or motivate you leaving all these things. So take a stand for yourself, understand the need of your brain and your time, and then work accordingly. So blame yourself if you are suffering from this. First of all, self-realization is the key, and then work accordingly and make a strategy. Thank you. Thank you so much, Sakshi. I just hope there's no social media influencer here who gets offended by our statement that was No offense. employment. Next up, we have Surbhi. Please, ma'am, go ahead. Thank you so much. What is social media and why is it so important to us? ये इतना जरूरी है हमें. And finally, what do you think about the mental effect it is having on all of us? Fellas, my name is Surbhi and I am from Deshbandhu College, and I am here today to talk with you about uninitiative consequences social media is having on your mental health. Did you know? A collection of universities say that more than 60% of our usage is active by the social media users. हम में से बहुत लोग 2 घंटे से ज्यादा सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता देते हैं. इनफैक्ट all of us among us. And I am certain that anything we do for such long or pay this much long attention to has an everlasting effect.
whether we notice it or not. You see, the problem with the excess uses of social media in today's use with tomorrow's future. And we ought to be using the internet to build ourselves, to be equipped with the skills, knowledge, and traits required to build the utopia for all. But instead, we are using it to destroy ourselves and each other. And the best part, we don't even know it. हमें पता भी नहीं चलता और कब इतना कुछ हो जाता है. It is as active as alcohol and tobacco. ये मेरा illusion नहीं है, कोई theory भी नहीं है, ना कोई fact है, but it is reality. Because we know that chemical dopamine is released whenever we get a bing, buzz, or flash or beep from our phone or email, right? So dopamine is the exact same chemical that is released in alcohol, nicotine, and gambling. In other words, it can be addicted if left unbalanced because a little alcohol is great, too much alcohol not so great. Gambling is also fun, too much gambling is really bad, right? And technology is wonderful. Too much technology can be destructive and destroy our relationships, like all addictions destroy our friendship. Not Beautifully. exaggerating it much. At last, I just want to wind up by saying, मैं ये नहीं कहती कि after deleting social media, you will immediately become a better person, find happiness, and get richer goals. Deleting social media in itself doesn't bring in a thing of direct values in your life. It is basically an avenue to individuals' freedom. बस अपने लिए. Happiness, life, everything is little easier if you treat people around you nicely, honestly, and first particularly to them. I think the world would be a better place if you possess this thought. Thank you. A great rhetoric example presented by you, Surbi. Delighted to listen you. Moving forward, just wanted to add that social media was created to impact people, not to impress. But today's generation somehow started impressing people by following the trend that was going on. However, at today's world, nobody is busy in finding their own trend. Always everyone is busy in following up, as our chief guest also said. So, put the emphasis on not only the pros but also the cons from the our generation also. So moving forward, we have our next participant as Anubhav. Anushka, he is not with us. I request everybody to please start raising their hands. We are waiting for you, yaar. Please go ahead. गाइस सोशल मीडिया के सिर्फ ये नहीं बताना है कि सही है या गलत, ये बताना है कि हम अगर गलत है तो किस तरह गलत जा रहे हैं, सही भी बहुत अच्छे तरीकों से. तो यू वी ऑल आर आस्किंग यू टू टेल एज वी हैव सो मेनी पार्टिसिपेंट्स विद यंग एंड टैलेंटेड माइंड. तो आपको जो भी लैंग्वेज में अपने व्यूज प्रेजेंट करने हैं, सोशल मीडिया सोसाइटी को किस तरह कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया से किस तरह सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. सो ऑल इज इन योर हैंड्स टू प्रूव हाउ सोशल मीडिया इज. वी नो वी हैव बोथ प्रोज एंड कॉन्स, बट आपका वैल्यू, आपका वॉइस, आपका थॉट मैटर करता है. सो कम ऑन गाइज एंड प्रेजेंट योर व्यूज. Raise your hand. We all are waiting for the same. Yes, Ashima, please go ahead. Yeah, so hey everyone, this is Ashrama. So basically, my viewpoint on social media is that, like, so Sakshi mentioned that about influencers and stuff. Maybe it does work for her, but on my part, it works a lot for me, honestly speaking. But there are like I'll say cons of reels on that. If I start watching reels, then I'll like spend 2 to 3 hours on reels, and then when the message will pop, like 5% of your data has been used, only then I'll realize, okay, I'm using a lot. That's the point. Otherwise, the social media, like reels and stuff, and the post, some of the posts are actually so influential and so motivation that 2-3 दिन के लिए पता है motivation, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन की आ जाती है, but motivation. So that is actually useful for some time. And there are a lot of problems, like मैं खुद के लिए बात करूँ तो I have specs, and that's reason because I have been using a lot of social media sites lately. And another thing is that we need social media actually. We need it at like, it's really important to have social media. First of all, colleges की information आती है. There are a lot of accounts, college accounts, and they're really useful for us. And उनके through हमारे पास instant messages आते हैं, instant ये आती है. Other problem, अगर आपको हर चीज spend करके social media पे जाके मेरी तरह reels ही waste करनी है, तो you are actually wasting your time. I have stopped working with, but I have stopped, like started putting some barriers on my usage.
बट यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट. हर किसी को टाइमिंग्स पे वर्क करने की जरूरत है अपने, कि आप कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो. बी वेरी प्रिसाइज, लाइक पूरे दिन में अगर आप 1 घंटा यूज कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. Be limited, and that is actually useful. You will actually realize that it's a boon and not a pain. It's all up to you कि आप उसको boon बना रहे हो या boon बना रहे हो. And at last, I just want to say कि use your brain. अच्छी सी चीज देखो. देयर इज लॉट ऑफ स्टफ इन सोशल मीडिया जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, जो आपको अच्छा बताएगा. देयर इज अ लॉट जो आपको गलत भी आएगा. अब दैट गलत पार्ट जाइए. थैंक यू. Thank you Yeah. so much, Achima. I was eagerly waiting for this point to come up. Actually, I'm also saying the same thing, that social media has a lot that it has given to us. Next up, we have Leena. Sakshi, we will get back to you. Okay, next up, we have Leena. Please, ma'am, go ahead. Good afternoon, everyone. I am Leena Kumari. I am first year student from Indraprasth College for Women. तो जैसे कि आज का टॉपिक है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे समाज में हमारे समाज को तोड़ता भी और जोड़ता भी है. तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सोशल मीडिया के बारे में, कि इसके कई सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. लेकिन हम हमेशा डिसएडवांटेज को ही क्यों देखते हैं, हमें उसके एडवांटेज को देखना चाहिए ना. क्योंकि अगर एक चीज आपको बिगाड़ रही है तो वो चीज आपको सुधार भी रही है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कई सारे लोगों का जीवन बनाया भी है. और सोशल मीडिया क्यों बनाया गया था? ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ताकि हमें हमारा विकास हो सके, ताकि हमें हर चीज के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो. सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि केवल आपका जीवन बर्बाद करने के लिए है. इसके निर्माता ने भी यही सोच के बनाया हुआ है ताकि लोगों को आसानी हो चीजें जानने में, समझने में. अब मैं एक पॉइंट पे आऊंगी. जैसे कि जब मैंने सोशल मीडिया चलाना शुरू किया था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि आजकल के यूथ में ये चीज है कि वो हमेशा से पता नहीं क्यों अब्यूजिंग वर्ड्स का बहुत यूज करते हैं सोशल मीडिया पे. वो सोचते हैं कि अगर हम अब्यूजिंग कमेंट करेंगे या फिर किसी भी टाइप के ऐसे कमेंट कर देंगे जिससे कि उस पोस्ट को या फिर उस वीडियो को किसी भी टाइप का इमेज मिलेगा, किसी भी टाइप की रिलेवेंस मिलेगी. तो नहीं, आप अपना कैरेक्टर दर्शाते हैं उस समय, आप अपने चरित्र दर्शाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है. तो आजकल के ट्रेंड में यही है कि मोस्ट ऑफ दी, मैंने ये सच है क्योंकि मैं अपने आसपास और सोशल मीडिया में भी ऑब्जर्व करती हूँ कि पढ़े लिखे लोग ये अब्यूजिंग वर्ड्स का ज्यादा यूज करने लगे हैं. वो सोचते हैं कि ये ट्रेंड है, ये मतलब हमारे मतलब ये स्वैग है, कूल है, बहुत अच्छा है. लेकिन नहीं, याद रखिए कि आपकी भाषा आपका व्यक्तित्व दर्शाती है. आपकी भाषा के द्वारा ही आप अपने आप को आप अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं. किसी मजाक में भी ना आपको अब्यूजिंग वर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका नहीं, आपकी भाषा का भी अपमान होगा. तो सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी ने बता दिए हैं, मैं आगे क्या ही बताऊं, क्योंकि सबने बहुत अच्छा बताया है. सुरभि जी ने भी कितनी सारी जानकारी दी है कि ये एक तरह का नशा है, यानी सही कहा है. क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया को खोलते हैं तो लग जाते हैं, बिल्कुल 3-4 घंटे हमारा हो ही जाता है उसके अंदर. फिर बाद में क्या देखते हैं, अरे हमें जो काम करना था वो काम कर नहीं पाए. तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा हम पर संयम ही नहीं है. जैसे कि मैम ने बताया कि एक तरह से व्रत का है, सही कहा उन्होंने. जब तक हम किसी भी चीज को करने के लिए अपना मन ना बना ले, अपने अंदर एक तरह का नियंत्रण ना रख लेना, तब तक उस चीज को हम कर नहीं सकते हैं. एक बार मैंने खुद किया था. मैंने ये सोचा कि भाई आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है. तो जब मैंने खोला अपने फोन में, जैसे कि अपना फोन खोला, तो मैं क्या देखती हूँ, नेट ऑन किया, नहीं इतने सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं. फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को नोटिफिकेशन देखनी नहीं है, चाहे इंपॉर्टेंट है कुछ भी हो, लेकिन आज मुझे मेरा टॉपिक कंप्लीट करना है. लेकिन अगर जैसे कि आप अगर अपने अंदर संयम बना लो, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रख लो ना, तो आप किसी चीज को कर सकते हो. ये बहुत ईजी है, बस अपने अंदर संयम बनाना है. याद रखिए, फोन को आपको कंट्रोल करना है, फोन आपको नहीं कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये फोन आपके हाथों में है, आप फोन के हाथों में नहीं हो. तो मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप यूथ हो तो प्लीज इस बात को समझिए, भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका सही उपयोग करिए, ना कि अपना चरित्र बिगाड़िए. धन्यवाद. Thank you so much, Leena. We are glad to hear you and your viewpoints. At the same time, आपने जिस तरह बताया कि जहां भी बात आती है सोशल मीडिया की या कहीं पे इन्फ्लुएंसिंग की, we all
आर फ्रॉम अ जनरेशन और फ्रॉम अ ग्रुप जहाँ पे हम नेगेटिव इफेक्ट्स अपने बड़ों जैसे बात करते हैं, बट डू इट इम्पैक्ट, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छे से आता है. एंड एज आर former participants like Ashima and everyone told, it depends on us how we use, how we gain the knowledge, because everything has prospects of two sides that we all are aware of, right? So how to use it is on us. So that's a point of conclusion that everyone will mention how to use. But before the discussion, let's know that how it is polarizing us, how it is polarizing mind, society, people, everyone. So can we move forward, Diksha, and who is our next participant? And Nancy Rajput, please go ahead. Hello everyone, I'm Nancy Rajput from Dolat Ram College of Delhi University. Currently मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, और जैसा कि अभी लीना बोल रही थी कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. मैंने स्टिल मेरे को इंस्टाग्राम अभी चलाना नहीं आता है, तो मैंने एक पोस्ट देखा था इंस्टाग्राम पे, नहीं यूट्यूब पे देखा था कि आप इंस्टाग्राम को अगर यूज करोगे ना, थोड़े दिन यूज करोगे तो 5 मिनट कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा आदत हो जाएगी उसकी कि आपको 5 मिनट में जाके चेक करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन में आया क्या है. तो जैसा लीना बोल रही थी कि हम फोन के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में फोन है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए. फिर मैंने सोशल मीडिया का यूज किया, मैं यूट्यूब पे गई, मैंने देखा कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें. वो बोल रही थी कि मैंने सोचा कि आज मैं टॉपिक कर लूंगी कंप्लीट. जब भी हम कुछ टॉपिक, आज के टाइम पे हमारे साथ ये होता है, हमें कुछ भी टॉपिक दिया जाता है, वी गो टू गूगल एंड सर्च इट. तो हम इसको देखते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम जो टॉपिक चेक करना था वो चेक नहीं करते हैं, उस पर जो भी जो भी नोटिफिकेशन आया होगा उसको चेक करते हैं. तो ये सब चीजें हमें अपना माइंड ना डाइवर्ट कर देते हैं. तो हमें अपने माइंड में ये चीज लेके चलनी चाहिए कि हम चेक क्या कर रहे थे. कुछ भी ऐड आया है या तुम्हारे काम का ही नहीं है तो तुम उसको देख क्यों रहे हो. यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ. तो आपको जो भी चेक करना है वो आप चेक कीजिए. एंड आपको जो आजकल ना ये ज्यादा बहुत चीज हो रही है, कोई भी प्रोड्यूसर है अपना ऐड दे देगा तो हम उसको चेक करने चले जाते हैं कि इसमें है क्या. फिर हम उसको चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि अरे यार ये तो फ्रॉड है. फिर हमको ये टेंशन हो जाती है कि अब इस फ्रॉड से निकले कैसे. फिर हम उस फ्रॉड में फंस गए. तो फिर वो होता है ना कि फेसबुक पे इतने लोगों ने या फ्रॉड के कर लिया और इतना लाख पैसा ले लिया. यार तुम फ्रॉड में फंस गए, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा फोन है, तुम उसके अंदर जाने से पहले सोचते क्यों नहीं हो. यू शुड यूज योर माइंड बिफोर यू टेक अ स्टेप. हमें नहीं पता कि हमारे सामने वाला कैसा है, हमें नहीं पता कि वो आगे वाला लड़का है या लड़की है. तो हमें थोड़ा सा तो अपना माइंड यूज करना चाहिए ना. आशिमा दीदी बोल रहे थे शायद कि अब वो जब रील देखते हैं ना तो 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं उनके. अभी तक मैं ना टिकटॉक आया था ना, मैंने टिकटॉक यूज किया ना इंस्टाग्राम यूज किया. मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं 3 रील देखूंगी, इतने में मैं मैथ का एक क्वेश्चन सोल्व कर लूंगी. ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए. आप ना अपने टाइम वेस्ट, आपने जो वेस्ट किया था उसको अगर आप देखोगे कि हम इस टाइम में क्या कर सकते थे, आपके अंदर ना थोड़ा पछतावा होना चाहिए कि आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया यार. टाइम तो ऐसा होता है ना कि हम चाहे कितना ही पैसा दे दे उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते. तो वी शुड कंट्रोल आवर माइंड एंड ऑल्सो आवर नेट. हमें ना अपना कॉलेज भी फोन पे ही चलता है, लैपटॉप पे चलता है, नेटवर्क पे चलता है. मैं ये सोच रही थी कि अगर नेटवर्क होता ही नहीं तो क्या होता. अब तो देखो अपना कॉलेज जो है वो फोन से ही चल रहा है, लैपटॉप से ही चल रहा है. बट ये तो कोरोना टाइम है ना, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं. अब इंटरनेट 4G कर दिया, 5G कर दिया. अगर आप एक चीज देखोगे कि ये इंटरनेट 4G 5G किया है, ये किसी कंपनी ने किया है. जियो, एयरटेल, VI जो भी है, उनको बनाने में प्लेस भी चाहिएगा. तो पहले भी तो काम होते थे ना. यही तो था कि टाइम ज्यादा लगता था. लेकिन आप ये जो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है इसके कारण से पॉल्यूशन भी तो बढ़ा है. पहले लोग जीते थे 80 से 90 साल, अब तो नहीं जीते, 60 से 70
10-10 साल जीते हैं, 20-30 साल उनके डायरेक्ट कम हो गए एक साथ। तो अब अपना 1 घंटा बचाते हो, 2 घंटा बचाते हो, क्या करते हो आप? 20-30 साल कम भी तो करते हो ना। तो इज 2 or 20 or 30 years इज इक्वल टू 2 or 30 hours? नो, there are a lot of difference. Change your mind and just control your mind. That's all from my side. Thank you so much, Nancy. I think she will be our motivation for 2 to 3 days to control ourselves on social media. Next up, we have Mr. Shekhar. Please, sir, go ahead. Hi everyone. Today I will talk about like how it polarizes the society and how it controls the society. Because social media के अंदर वो हम सबको पता ही है, हम we are all addicted, because मैं भी also addicted हूँ like reels, YouTube, इन सब चीज़ों से। तो इसमें होता है क्या है कि 5 मिनट्स हम यूज करते हैं and बाकी के टाइम वो हमसे यूज करवाता है। तो द थिंग बिहाइंड इज द एल्गोरिदम्स, कि जिसके अंदर क्या होता है लाइक कोई भी अगर हम अपना एग्जांपल ले लें लाइक रियल पॉलिटिक माइंड्स है। तो इसमें क्या होता है, हमने कोई ऐप क्रिएट किया इसका, तो उसमें जो टेक के बंदे होंगे वो तो सिर्फ होंगे 5 से 7, लेकिन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और टीम होती है उसमें मोस्टली साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये सब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो एल्गोरिदम को क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल ले लूँ तो मैंने स्नैपडील से सर्च किया कि मुझे जिम का बेल्ट खरीदना है। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद अब तक भी अभी भी अगर मैं यूट्यूब खोलूँ तो उस पर अभी भी वो मैसेजेस मीन्स वो ऐड आ रखी है। मीन्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी हर जगह वही ऐड, वो डिच कर ही जाएगा जब तक हम परचेज करेंगे नहीं उस चीज को। होता क्या है, जैसे उन्होंने सेट कर दिया 30 पीरियड का मीन 30 डेज का है, लेकिन वो उनके रिकॉर्ड में रहता है कि इस बंदे ने इस चीज सर्च किया, देन वो एल्गोरिदम बार बार आती है। लाइक हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वो लोकेशंस मांगते हैं, एप्स आजकल सब लोकेशंस मांगते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट पे जाकर बैठ गए, एकदम से फिर फूड्स के ऐड आने स्टार्ट हो गए रेस्टोरेंट पे जाकर। ऐसा भी होता है, फिर हमने देखा कि अच्छा ये भी है ये भी है, एंड देन फिर हमने वहां भी खा लिया, देन कुछ दिन तक वो फूड्स के ऐड आते ही रहेंगे, फिर हम जोमेटो से भी उसको ऑर्डर करेंगे। लाइक इट हाउ इट कंट्रोल्स द सोसाइटी एंड लाइक अभी ये सब पॉलिटिक्स में भी आ गई है ये सब चीजें, मार्केटिंग वगैरह की। तो अभी यूपी के इलेक्शंस हैं तो जितने भी ग्रुप्स हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे अभी उनका चालू है, बिकॉज लोग सर्च करते हैं तो उसमें पॉजिटिव्स भी आते हैं नेगेटिव्स भी आते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। एंड वो एक तरीके से होता क्या है, कुछ भी हमने सर्च किया तो एड्स बार बार जैसे आएगी तो माइंड में सबकॉन्शियस में बैठ ही जाएगी, हाँ ये है बिल्कुल, मीन्स यही हमें अब वो बैठ गया मतलब दिमाग के अंदर। देन सोते हुए खाते हुए वो दिमाग में चलेगा ही चलेगा। एंड दिस इज हाउ द एल्गोरिदम्स वर्क, बिकॉज आजकल जितने भी कंपनीज हैं टेक कंपनीज हैं, हम किसी का भी ले लें वेदर इट्स यूट्यूब या इंस्टाग्राम, उनमें ज्यादातर अभी तक मैंने देखा तो टेक के बंदे कम है, बाकी जो एथिकल हैकर्स एंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये ज्यादा है उनके अंदर। Thank you so much, Shekhar. Your words were more of practicality, where you really told the ground reality. At the same time, I looked towards our chat box where people were discussing. So I just want to share a very personal experience regarding the same, that when anger trolls the internet looking for a hook, it's time to disconnect and go and read a book. So like for now, we all the devices are busy looking for that when DU will open, like DDMA notice, everything is coming up, not DU reopening. And when we all are frustrated, we are better to go for looking for books, as we ourselves know that whatever comes will come. Let us study because that's the main motto, right? So here, moving forward with our session, we have our next contestant, that's Anubhav Tyagi. No, actually, it's Yash Tyagi. Okay, I'm very sorry. It's Yash Yes. Tyagi. I'm sorry. Yes, Yes, please go ahead. Hello everyone, happy Vasant Panchami. This is Yash Tyagi, a second year student from Zakir Hussain College. Today, like as everybody has already explained, that social media has two sides, and every coin has two sides. So I will not speak on the topic कि social media के benefits क्या हैं, वो तो सबको पता ही है। Today I'll tell कि जो topic है कि social media has polarized the society, and I think it has polarized up to a very great extent. And which is very big harm and danger to a democracy too. I'll tell you why.
So the one thing, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ. The one thing which social media has brought revolution is in the facilitation of freedom of expression. People who want to speak on less topics या taboo topics, जो taboo हमारी society में consider किए जाते हैं, did not get much chance to speak on the given issues because given the complex environment of a society. But through this social media, people are able to voice their views and opinions. For example, LGBTQ की जो राइट्स वगैरह की बातें हैं, हम लोगों ने लाइक बहुत कम, आज से 5-6 साल पहले हम सुनते थे, सिर्फ मूवीज वगैरह में सुनते थे. बट आज सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है कि बहुत से लोगों को तो पता ही चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. सो आई थिंक कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग रेवोल्यूशन व्हिच सोशल मीडिया हैज ब्रॉट. बट नाउ एट द सेम टाइम इसके जो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, आई वुड से, is it is not bridging the differences, rather it is the people are moving further away from each other. Political parties and interest groups use psychographics for their benefit. There is very less emphasis on where there is very less emphasis on the facts and figures. What these people do is they attack on people's insecurities, fears and emotions for their own benefit. See, like अगर आपको किसी का सपोर्ट लेना है तो the easiest thing is आप उनके इमोशंस पे सीधा डायरेक्टली आप अटैक करो, तो दे विल फील लाइक कि हाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है हमारे साथ, जो असली में नहीं हो रहा है. बट एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि यस हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें वॉइस उठानी चाहिए, जो जिसकी बिल्कुल नीड नहीं है सोसाइटी में. बट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, बट उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, उनको एक पावर चाहिए एक सोसाइटी में, इसके लिए वो लोगों के सपोर्ट के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट. अब यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है सोसाइटी इज फेसिंग इज द लैक ऑफ हेल्दी डिस्कशन. आप लोग देखते होंगे कि कहीं अगर आप बाहर जाओ, अपनी कॉलोनी से बाहर निकलो, तो बड़े लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो बैठ के कहीं कहीं बात कर रहे होते हैं पार्क में, आप लोगों ने देखा होगा. तो वो लोग आई थिंक दे आर बेटर देन अस बिकॉज ऑन सोशल मीडिया हम लोग सबसे बड़ी जो मैंने पॉइंट बोला कि लैक ऑफ हेल्दी डिस्कशन, वहां पे डिस्कशन होता है. बट सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पे अगर एक पॉइंट किसी ने लिख दिया या फिर एक मेजोरिटी ऑफ पीपल एग्री विद अ पॉइंट, सो अगर गलती से भी किसी एक या दो लोगों ने उससे डिसएग्री कर दिया, देन पूरी एक ट्रॉल आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है. एंड दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट जो मैं बताना चाह रहा हूँ. और ये लाइक एक ऐसी चीज है कि इससे लोगों के सीधा मेंटल इफेक्ट भी होता है बहुत ज्यादा, बिकॉज लोगों को लगता है अच्छा हम अपना वॉइस ही, हम मतलब ओपिनियन वॉइस ही नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज मेजोरिटेरियन व्यू है, तो हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर पूरी ट्रॉल आर्मी आ जाएगी. एंड आई डोंट वांट टू गिव एग्जाम्पल्स जो ऐसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जैसा नैरेटिव क्रिएट किया गया अगेंस्ट बॉलीवुड, वो सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे पूरी पूरी ट्रॉल आर्मी इसमें बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं के कमेंट्स में कैसे भर गए थे वो लोग, उन लोगों को कमेंट्स अपने बंद करने पड़े. सी ये दिस शोज कि हमारे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा कि देश में लोग सेंसिबल लोगों की कितनी कमी है. और ये लोग सेंसिबल, ऐसा नहीं कि ये लोग हैं सेंसिबल या हो नहीं सकते. द थिंग इज जिन लोगों को लगता है हमारे व्यूज कोई दे रहा है तो हम उसका साथ देंगे इररिस्पेक्टिव कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. ये सबसे बड़ी गलती है कि इफ वी फील लाइक इफ ओके दिस पर्सन ही इज रियली ग्रेट स्पीकर, बट वी कैन नॉट से कि एवरीथिंग ही सेज इज राइट. उसको हमें अपनी बुद्धि लगा के थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि हाँ ये सही है कि गलत है. और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिग लीडर्स हैं, वो यही इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि उन्होंने एक चीज बोल दी, लोग उनसे अपोज करेंगे ही नहीं, और दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर द डेमोक्रेसी. और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल डेमोक्रेसी में अपोजिशन की नीड लोगों को लग रही है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए अपनी डेमोक्रेसी के लिए. उसी तरह सोशल मीडिया पे भी अगर कोई व्यू है तो उसके लिए काउंटर व्यूज होने की बहुत जरूरत है, वरना इट्स लाइक वरना हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसे तरफ ले जाएंगे जिसे टोटलिटेरियन बोला जाएगा. बस आगे एक बस लास्ट पॉइंट में कंक्लूडिंग देना चाहूंगा कि हम लोगों का जो ये जो वर्क करता है कि हम लोगों को क्या कंटेंट मिलेगा वो हम ही पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अगर आप एक आइडियोलॉजी के पर्सन की वीडियोस देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हो, तो आपको उसी से रिलेटेड जो और लोग हैं उसके व्यूज के रिलेटेड है, आपको वही दिखाया जाएगा. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत गलत है, मैं खुद देखता हूँ, बट फिर आपके पास अगर दूसरे किसी व्यूज की जो वीडियोस है वो आपके पास नहीं आएंगी. वो जैसे अंशुल सक्सेना इज ट्विटर, वो राइट विंग का है, तो पीपल अगर उसको फॉलो करेंगे तो उनके पास सजेशंस भी उसी के आएंगे. लेकिन इसका हमें ये सोशल मीडिया का काम है, क्योंकि इससे फिर उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनके लाइक जो लोगों को चाहिए अगर वो सोशल मीडिया दिखाएगा, जो सोशल जो वेबसाइट्स हैं, तो उनके इससे व्यूज बढ़ेंगे, उनको तो भाई पैसे कमाने से मतलब है ना.
हमारा यहाँ पे दायित्व जैसे बोला जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ एक व्यूज के पीछे ना भागे, हम 2-3 डाइवर्स व्यूज करें, बिकॉज हर बंदा यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं होता कि वो हर व्यूज को अपने अंदर लेना चाहेगा, लेकिन हर बंदा एक गुड सिटीजन तो होगा ना, देश का बनना चाहेगा ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एक सिर्फ जो एल्गोरिथम है उसका शिकार ना बनिए, और बहुत सारे लोगों को अगर आप देखते हैं, मतलब एक लोग को देखते हैं तो काउंटर व्यू भी देखिए। और एंड पॉइंट मेरा कि आजकल राज्यसभा टीवी पे, संसद टीवी पे बहुत अच्छी डिबेट्स चल रही हैं, उनके शॉर्ट शॉर्ट जो भी स्पीकर्स हैं उनके 10-10 मिनट्स के जैसे शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स वो लोग अपलोड करते हैं, तो यू कैन सी दैट ऑन देयर यूट्यूब चैनल, इट्स वेरी ग्रेट। और आप इसमें दोनों साइड का व्यूज ले सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. And, I think this was a perfect example of what experience and seniority is. And you very well pointed out all the aspects that social media carries with itself, and also gave us some valuable suggestions that we of course need, because हम भावनाओं में बहुत बह जाते हैं कि अगर ये मेरी बात कह रहा है तो यही मेरा दोस्त है, भले ही फिर वो दुश्मन हो. So it was great to hear you. Thank you. Next up we have Dronika Khatri. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are. So, I am Dronika from DNG. I will put forward my views. So, yes, social media is polarizing society. Social media does not contain just original content. It contains several types of content, such as paid news, influencer trying to promote things for news, for money, fake news, hate speeches, political motivates posts, etc. People get affected by what they watch, see, and listen to in daily life, and hence social media is influencing common people to form opinion on several issues. These days, we are frequently witnessing content in social media that is evoking strong emotion in public. Some people are sharing content and making it viral without thinking about the consequences, and viral posts are making it to headline in traditional media such as newspaper and influencing the opinion of even those who do not follow social media. So that's all.